Yeah, Saida. I am a master's student in social work doing in from Aurora University. Might have heard about it. Okay, it's a so when people age and they're senior at certain age, it doesn't affect everybody, but like certain senior citizen which kind of like are a victim of such type of disorder disease. Um, so this causes um, like you know people tend to forget things, even the names of the close friends, relatives, family members, and incident of far and near future or past. Oh, sorry, I mean like past. Yeah. Actually, not future, my bad. So how to cope up with this? So we cannot escape this. We should not think that this is something which has affected me. It doesn't affect just you. It has been affecting people and it will affect people. I mean like there could be certain level of control but not full control over this particular disorder, but there are ways which we can manage it. Okay, so I have certain points that's going to help Alzheimer. So first and foremost, what we should do, we should keep our home environment safe for us. Like for example, a person is suffering from Alzheimer, then and also when at this stage we are like suppose I am like a senior citizen, I have this disorder. I also will have like hearing problem as well, and also sight. Okay, because obviously so because we our everything weakens as we grow. So keep our home safety. Remove those stuff from our way. Like say for example, you have a daily routine. Like when you wake up and then you go to the bathroom, okay, and then you go to the kitchen to make coffee, and then sit in your table. Then after like you go to your sitting room where you like tend to read the newspaper and all that. So all these areas you should make sure that there should not be anything which is a hurdle, okay, for you. And number two is just cope up with the routine. Okay, routine has to be in such a way that dressing, showering, and eating. It should be like in a normal way, not that haphazard. Okay, आपने इस तरह से बनाना है कि आपका smooth जाए, easy हो जाए. You don't need how you should, because obviously you're forgetting things. And independency also, कि इसको independently हम किस तरह से हैंडल करते हैं. हमारी जितनी भी ताकत है, हमारी जितनी भी एफर्ट है, हम वो सारा इस्तेमाल करके हाउ टू मेक आवर डे इजी. या और सबसे बड़ी बात है, when we are facing such type of stage and phase, we have to reduce our stress. When we are stressed, things goes wrong. Okay, stress free. I mean, this is with everybody. Things that is not me only. This happens to everybody. अगर कोई caregiver है, they are there obviously, but then try to be independent. So that's a very important thing. Is stress free, independency, and take it with dignity. Okay? So when you give respect to yourself, others are going to give respect to you as well. Yeah, आप जैसे आप अपने आप को रखेंगे, सामने वाला वैसे ही समझेगा आपको. Take it positive. Exactly. My attitude कैसी होनी चाहिए इस तरह. That's good. Can't you say in Urdu? अच्छा ठीक है, बिल्कुल. इस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, हमारी अटेंशन को हमारे ऊपर, वी शुड नॉट पीटी आवरसेल्फ. हमें अपने आप पे जैसे तरस नहीं खाना चाहिए. हमें इसे क्या करना है, हमारी अटेंशन को
अब अटेंशन स्पैन को हमें क्या करना है, दूसरी जगह डाइवर्ट करना है, छोटी मोटी चीजें करना है। अगर आप वॉक कर सकते हैं, वॉक करें, थोड़ी सी डस्टिंग कर लें, है ना, थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लें, थोड़ा वाटरिंग कर लें, प्लांट्स अगर है, गार्डन है तो थोड़ा वो कर लें। एवरी हेल्प इज वेलकम। आप अगर आपके बच्चों के साथ रह रहे हैं, अकेले रहे, एवरी हेल्प इज वेलकम और पीपल विल अप्रिशिएट यू, डॉटर इन लॉज, क्योंकि दैट्स अ हेडेक। तो इस तरह के काम करें, आपका डाइवर्ट होगा अटेंशन और उससे आप you will be useful, okay? आपको you're worthy person because you work, okay? Comforting environment करें, बिल्कुल सुकून से, treat others, do not grumble on others, मुझे ये complaining इस तरह के ना करें, ताकि जो ना it becomes kind of like people think that well my father my mother is very loving, ओके बड़ा कंफर्ट, बड़ा सुकून मिलता है उनके साथ अगर हम होते हैं ना, कि कॉन्फिडेंट हम हर चीज हमारे लोगों के साथ होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव, किसी के पास ज्यादा नेगेटिव होती है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव होती है, लेकिन मैं हर चीज को टेक इट एज इट कम, गो विद द फ्लो, ओके, टेक इट एज इट कम्स, ओके। जिस तरह से है हमने जितना चेंज करना है हम चेंज करेंगे, अगर हमारे हैंड में नहीं है तो लेट्स फेस इट, ठीक है। हाँ, तो when we are not grumbling, when we are not complaining, people will us, they will like to be with us। चले हम इनके साथ बैठते हैं, हम इनके साथ इनकी बातें सुनते हैं, है ना, दुआएं लेते हैं, ये तो हमारे है ना कि हम इनसे दुआ लेते हैं, हम इनका कुछ करते हैं। अरे इनके पास गए तो एक काम करे तो फिर और चार काम हमें और करो कहते हैं। दैट्स काइंड ऑफ लाइक बड़ा नेगेटिव एक इमेज बनता है। वी शुड नॉट क्रिएट अ डिग्निटी मेंटेन होती है। हाँ, हमें ऐसा बनना है कि वी आर वेरी इजी गोइंग, हम बड़े लविंग हैं, हम बड़े वो है, जो भी है अल्लाह से करना है, क्योंकि इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। हमारे बच्चे जितना करते हैं हम उतना में हमें जो है ना करते, क्योंकि हर किसी की अपनी लायबिलिटी होती है, अपनी जो है ना प्रायोरिटी होती है। एट दिस एज नोबडी इज गोइंग टू स्पेंड 100% विद अ सीनियर सिटीजन, राइट, उनकी अपनी दुनिया होती है, तो टेक इट। तो जैसे मैंने कहा फिजिकल एक्टिविटी मेरे वॉकिंग करें, थोड़ी सी ही सही, घर के आसपास ही करें, मेक योर सेल्फ, मेक योर मसल, मेक योर बोन एक्टिव, के ऐसे जैसे अगर बैठ गए तो बैठ जाते हैं। आई नो आई वुड really appreciate the old, I mean like the senior people here, they say that our life starts after we retire. Itna zyada activity, those things that they did not do in their like young stage, they tend to do it in their old age because they have like ample of time to finish it, right? So बट हमारी कंट्री का क्या होता है, अच्छा ठीक है अब हो गया रिटायरमेंट तो अब हम आराम करेंगे, खिदमत करें दूसरे, ये होता है 2 साल करता है, 1 साल कोई करता है, उसके बाद करते ये तो बस बिकम एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, बड़ी लायबिलिटी हो जाती है, फिर 4 बीमारियां भी आ जाती हैं उसके साथ, बिकॉज यू ईट एंड यू डू नॉट डाइजेस्ट इट, you become prey to what, diabetes, you become prey to blood pressure and all that, and then you sit and diet, okay, that's going to help you, and then avoid certain things that at this age that you should all avoid. इमोशनली किस तरह से हमें हमारी अच्छाई वेल बीइंग के लिए सोचना है, इमोशनली किस तरह, सबसे ज़्यादा माइंड एंड इमोशन काम करते हैं, दिल और दिमाग का अपना जो है ना कनेक्शन है। कम्युनिकेट करें सबके साथ, अपने घर में आप कम्युनिकेट करें, बच्चा आपकी बहू है, आप बहू बेटे के साथ है, जितना भी उनको टाइम मिलता है ना कम्युनिकेट करें, थोड़ा ही से उनके हिसाब से। आपके घर नवासे हैं या फिर पोते पोतियाँ जिनके ना आप छोटे हैं तो उनके साथ करें, बड़े हैं तो फ़ोन क्या करें, कोई ना कोई तो होगा, नहीं एवरीबडी इज़ नॉट दैट बिजी, कोई ना कोई होगा, 2-3 में से एक आपका तो सुनेगा, कहेगा यस आई हाँ, और वो एहतराम करेगा, वो रिस्पेक्ट देगा, ये देगी कि चलो मुझे उन्होंने है ना, मैं पूछा, मैं उनको लाइक रिस्पॉन्ड करता हूँ, बात करेगा फ़ोन में ही सही, लेकिन आपसे बात करेंगे, आप बैठने के लिए आप कहेंगे तो बैठेंगे, हर कोई इतना तो नहीं होता, एक आगे में से बहुत लाइक वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी लविंग, आपका भी ठीक हो, अच्छा हो रहा है ना, यू आर कम्युनिकेटिंग, आपका भी वक्त गुजर रहा है और उनका भी वो हो रहा कि भाई माई ग्रैंड मदर इज वेरी लविंग, शी रियली केयर्स फॉर मी, शी लव्स मी, ठीक है ना, दोनों तरफ से हो रहा है। फिर आप अपने जो है ना बच्चों के साथ भी कहें कि अब पता है कि आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट देन बेटा मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, कोई बात नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी बहू उन्होंने फेसबुक पे मेरे बारे में क्या लिखे, माय मदर इन लॉ इज आयरन वुमन,
Wow, see? That's good. So proud of her. Yes, I have communicated Facebook with पे her. नहीं माशाल्लाह, इतना वो करती है। she is ahead of her age. मतलब वो अपनी एज जो अपनी जो एरा है ना, उससे बहुत आगे है, वेरी प्रोग्रेसिव है माशाल्लाह, उनकी सोच माशाल्लाह बहुत एडवांस है। तो आई रियली अप्रिशिएट हर, आई टॉक टू हर माशाल्लाह। इनकरेज करें इंटरेक्शन भी। देखिए आप आसपास आप जानते होंगे कोई रिलेटिव फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि दे आर गोइंग थ्रू द सेम एंड दे कंप्लेन अ लॉट, ओके? तो खुद तो चेंज हो, उनको भी मुतासिर करें कि भाई इस तरह कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना? कमेंट भी अच्छे नाइस होने चाहिए। वुमन कैन नॉट बी वुमन कैन बी फ्लावर। नो, आयरन मैन एंड आयरन वुमेन भी होते हैं, वुमेन भी होते हैं। वो कैसे होते हैं? फ्लावर तो वो हमने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, अच्छा। ठीक है ना? तो एवरी हाउसवाइफ अगर है ना इज अ आयरन वुमेन, क्योंकि वो पूरा घर संभालती है। मर्द ठीक है पैसे अर्न करते हैं, उनके अपने वो होते हैं लाइक आउटसाइड, लेकिन घर में अगर बच्चा अच्छा है, बच्ची अच्छी है, कोई एक आध कोई ऐसा होता है कि बाहर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन घर का 90% इन्फ्लुएंस होता है। माँ है, बाप होता है, बाप इज नॉट 100% शुड बी कमिटेड, लेकिन माँ 100% होती है। एक आध कोई होते नहीं होते होंगे, बिकॉज आई हैव नो आइडिया, क्योंकि एक आध ऐसा आपको अभी कांटेक्ट नहीं पड़ा, आपको वास्ता नहीं पड़ा। आई नो होता है ऐसे केसेस के दे आर नॉट वेरी कमिटेड, लेकिन माएँ होती है कमिटेड। अल्लाह ताला वो कुदरती है माँ के ऊपर। मैं कितना भी कुछ कर लूँ, आई डू PhD, आई बिकम अ ग्रेट स्पीकर, एक ग्रेट लीडर, मेरा दिल और मेरा सोल मेरे घर में मेरे बच्चों में होता है, ठीक है? ये तो सारी चीजें होती रहती है ना, ये तो मेरा प्रोफेशन है, ये तो मेरा दिस इज व्हाट आई शुड डू फॉर माय ब्रेड एंड बटर। पर मेरी जो असली पूंजी है दैट इज माय फैमिली, माय किड्स, ओके? तो अगर माँ आयरन नहीं है तो इतना सब कुछ कैसा करती? खाना देना, बच्चों को टाइम से, है ना? अब ये कंट्री में तो हमें ड्रॉप और पिकअप भी करना होता है, वो करती है अपनी लेवल में, हर एक माँ स्ट्रगल करती है ना? क्योंकि ऐसे कंट्रीज में अंकल मैं कहती हूँ कोई बड़े अवेलेबल नहीं होते उतने ज़्यादा जितने हमारे पास ननियाल ददियाल होता है ना, यहाँ होता नहीं। तो कौन है ऐसे माहौल में, तो और ज़्यादा माएँ वो सपोर्टिव होती है, क्योंकि उनके बच्चे बिगड़ ना जाए। ये हमारे पास कैपिटल सेंटर है ना। तो वन मोर थिंग, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अगर माँ पढ़ी लिखी रहेगी तो आने वाली कौम पढ़ी लिखी आएगी। बिल्कुल, उसका बच्चा करियर ओरिएंटेड होता है, क्योंकि Yes, माँ नस्ल। का वो इन्फ्लुएंस होता है कि तुम एक अच्छा फील्ड चूज करो, तुम डॉक्टर बनो, तुम कंप्यूटर साइंस करो, तुम ये फला करो, वो करो। अगर बच्चे को पुश नहीं होगा ना फैमिली से, तो बच्चा यहाँ पे क्या होता है, ऐसी एटमॉस्फेयर है कि I want to do something in archaeology. Well, what is the scope of archaeology? You think? And then you do the degree and you sit with the degree unemployed. बैकिंग बहुत जरूरी है। I want to do in like something called art. What do you do? Are you a great artist? आपका passion, okay, fine, that's a passion. Unless you are exceptionally good in that field, then go for that. आपके अंदर वो टैलेंट है, कुदरती टैलेंट है कि आप वो फील्ड में गए तो यू आर गोइंग टू डू ब्रिंग मिरेकल, एक्सेल करने वाले हैं, देन गो। वो माँ समझती है बेटा, या इट्स ओके, यू लाइक इट, बट डू टेक इट एज अ पैशन, टेक इट एज एक अपना जो शौक की तरह, नॉट एज ए ब्रेड एंड बटर। कभी मैं कहती हूँ 50-60% जो होता है ना पैशन, कभी डजंट अर्न ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना? आपको ऐसी चीजें वो करनी है जो is kind of like, you know, will earn you bread and butter, will support you and your family. तो माँ का ये काम है। आप मेरे से हैं, इत्तेफाक रखते हैं, आपके माशाल्लाह आप सारी उम्र गुजारे हैं, आपने अपनी फैमिली में देखा होगा औरतें करती हैं, ऐसी नहीं है कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दे आर आइडेंटिटी, इवन इफ शी इज नॉट वर्किंग, शी इज नॉट अर्निंग, वो जो घर में उनका जो होता है ना, मैं आई एम इन समर, आई नो my schedule is so hectic. मैं तो इससे अच्छा है कि मैं काम, like you know, when I'm like working in school, okay, that's even like more relaxing. सुबह से मेरी रूटीन 2 दिन मुझे मिले हैं, सुबह से मेरी रूटीन शुरू होती है, शाम तक भी फिर भी काम खत्म नहीं होता। हाउसवाइफ का फुल टाइम you know, हम क्या करते हैं वर्किंग वुमेन, शॉर्टकट में वो काम And full time and no thank you job. बिल्कुल। We after coming home we try to do everything like fast, but housewife इसे सुकून से करती है, आराम से करती है, ठीक है? So because that's their job. So yeah, we agree with that.
एनकरेज सोशल इंटरेक्शन। आप सोशली एक्टिव है, अपने घर तो ठीक है, आप फ्रेंड्स में जाएं, अगर स्कोप मिलता है फ्रेंड्स में जाएं, कोई ऐसी एक जगह मौके है तलाश खाना, जैसे अब समर है, गो टू एनी पार्क, सिट देयर और एनी अदर लाइक किसी घरों में बुला लें, आप खुद जाएं। इट डजंट हैव टू बी लाइक फूड शुड नॉट बी अ मीन्स ऑफ attraction. Company should be a middle. Your goal should be, the interaction should be the mode of the mode of attraction, or should be the center point. We एक कप चाय अगर है, no problem, बस you don't need anything. ठीक है ना, वो चीजें जब आप सोचते हो, wow, what a healthy conversation we had, we really enjoyed. फूड पीछे चले गए कि अरे बुलाए तो खाना ना, doesn't matter. एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हर कोई बिजी है, ये सभी कहाँ जाके कुछ कर सकता, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। सो दिस काइंड ऑफ हेल्दी कन्वर्सेशन इंटरेक्शन इज वेरी वाइटल। वरना एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी हो जाती, एंजाइटी से फिर डिप्रेशन होता है, फिर आप कटने लगते हैं, फिर आपको सोशल गैदरिंग्स अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल वो चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, हमें ऐसा करना है कि वी आर सोशल हैप्पी गोइंग पर्सन बने। जहाँ गए आप ऐसा दिखा के आप खुशनुमा हो जाए, है ना, जान डाल दे, उतना हर कोई तो नहीं होता है, लेकिन अगर हमारे अंदर वो चीज़ है और हम अब कोशिश करें, कोशिश करनी चाहिए। हम ये समझ रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। कि हमने अभी इतनी उम्र गुजारी, हमारी अपनी मेमोरीज है, ठीक है ना, मेमोरीज को शेयर करें सबके साथ, छोटों के साथ शेयर करें कि उनके लिए गाइडेंस होती है, शेयर योर मेमोरीज कि उनके लिए इस तरह से गाइडेंस होती है। कोई एक इंसिडेंट है ना, वो कहें तो उसको ऐसे कि अच्छा ये टाइम ऐसा क्या किया था, तो ऐसे अगर उसको भी फेस होता है ना कोई ऐसी चीज़, तो यू विल अप्लाई द सेम थिंग, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आपके अंदर इंटरेक्शन ही नहीं है, बातचीत ही नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? तो वो बिल्ड करना पड़ता है कि भाई बैठो मेरे पास, मैं कुछ सुनाता हैं, आपके अंदर आपके साथ कनेक्शन है, तो दे विल ऑब्वियसली दे विल डेफिनेटली टेक योर गाइडेंस। आपके बच्चे हों, आपके नवासी पोते वगैरह, कोई भी, और कोई बड़े छोटे कोई भी हो ना, कि देयर एडवाइस इज लाइक गोल्डन एडवाइस। तो इस तरह से होनी चाहिए कि आप अपनी मेमोरी शेयर करें और अपने एक्सपीरियंसेस। अगर ये बहुत स्टेज आगे गुजर गया है, लाइक अल्जाइमर इज लाइक वेरी एक्यूट, तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर मेडिकेशन। बिल्कुल इसका सप्रेस मत करें उसको, नहीं तो बस लेट मी नॉट बॉदर एनीवन, नो, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट इज अबाउट योर हेल्थ। your kids can take a day off, okay, and can take an appointment and consult you to a doctor. It's very important. अब देखिए, आप there's no compromise on the ground of health. बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करें। ये किस तरह डायग्नोस होता है कि यू टेल द सिम्टम्स, थेरेपिस्ट होते हैं, ये ना, ये सारे जो होते हैं ना, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, थेरेपिस्ट, ये आप सिम्टम्स कहें आपके, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो लॉस तो हो रही हम लोगों को, हाँ, स्पेशली मी। हाँ जी, तो आपको जी मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं जो कि इस पे जो है ना, दे विल गिव यू लाइक मेडिकेशन, आल्सो दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ लाइक थेरेपी, जिससे कि यू कैन एक्सरसाइज ऑन दोज थिंग्स। मुझे उतना डिटेल नहीं मालूम हो, और इस पर भी इफेक्ट है। मैं घर में पजल्स और ये करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें इस तरह की करता रहता हूँ। लाइक डू लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज समटाइम्स, यू नो, सो और ऑल द टाइम कुछ ना कुछ नई चीज़ ढूंढने की कोशिश। वो लोग एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज के बताते हैं। Keep yourself because I'm too scared that I'm sure I'm gonna get that. It doesn't affect everybody. It doesn't affect. Right. थोड़ी सी, वो तो मुझे भी है। At this time, I forget things. मैं नाम भूल जाती हूँ। I forget things. हालांकि जो ऐसे tip of the tongue होता है, अभी याद था ना, वो होता है। Once in blue moon, it happens to everyone. This is normal. This is normal. When That's I am normal. getting, so I would imagine after like let's say 20 years, I will be, I don't know where I will be. I will be maybe a patient of Alzheimer's, because I am aware. I'm not gonna be depressed. Okay, I'm like mentally preparing myself. Okay, this can affect me. Dementia is about me, I'm sure, because it is mentioning about the medication, so it kinds of like help, but there's no perfect cure. It's not curable. काउंसलर्स भी होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, जिनसे आप जाके रास्ता कर सकते हैं। व्हेन इट इज लाइक रियली अक्यूट, कि आप दवाई लेके फिर से आपने दवाई जी ये भूल जाते हैं। मुझे let me tell you, sometime I also forget, like I work in Zoya, what's the date today, I forget,
ये this is human, this is something हम as a born as a human being, this happens to everybody. किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, but then there is always something called, like, you know, a struggle to Right. overcome our shortcomings. I have a calendar that I change the cards, Oh, the okay. 28th, 29th, Every day. like that. और फिर वो day- See, that's how you are managing your own Right. schedule, mashallah, according to this. बस आप अपने हिसाब से आप काम Right. करें, कोई आपने मदद नहीं करा तो ना सी कोई बात नहीं, आप हमारी क्या है कि Yeah. मेंटालिटी हमारी खिदमत करें। Right. नहीं, ये इतना जरूरी नहीं है, जो हम कर सकते हैं ना हम कर लें, हमारे हिसाब से मंडे हमें ये मॉर्निंग में की दवाई Right. लेनी है, वो- क्रॉस इट आउट सो दैट Right. you do not like, you know, get confused. जब हमें दवाई कुछ लगती है कि हमने नहीं खाई तो गो अहेड, as soon as you take the medicine just cross it out. ये तो हम घर में बैठे हम कर सकते हैं, मंडे how many times you have to take medicine and how many medicine, cross it out, just do it. I mean, this is a like an idea, you can do whatever however you want. Excuse me. मैं ये सब कुछ तो सीखा था एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर से। राइट, वो सुबह उठते थे तो सबसे पहले झटक पटक करते थे, अपने सोफे वगैरह सही करते थे, हैं, फिर वो जूते अपने उनके रोज़ाना वहाँ पड़े होते थे, उसको कपड़े से साफ करके, और अगर हम जाते थे हेल्प करने के लिए तो बोलते नहीं बेटा नहीं। मैं करूँ, देखिए वो लोग कितने जीते भी थे ना। My grandfather was 89, माशाल्लाह, he was DSP, पता है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस वक्त उनके अंदर इतनी डिसिप्लिन होती थी। सेम थिंग, माय ग्रैंडफादर वाज सुपरिटेंडेंट जो ऑफ पुलिस। डिफेंस में होते हैं, those who are in like, you know, like any defense or army or police, उस बैकग्राउंड के होते हैं ना, डिसिप्लिन उनके अंदर सबसे पहले डिसिप्लिन है, सबसे हमारे बड़ी बात। ग्रैंडफादर सुपरिटेंडेंट Very ऑफ पुलिस good, थे। very good. And one of my neighbor, he lived like 90 years. अच्छा, उनके पास क्या होता है, काव होते थे, they were like not very advanced के वो लोग वॉक करते, उनकी इतना वर्क होता है ना, काव होता था, and then all he used to do everything, like टाइम टेबल 4-5 दिन पहले हमने उन्हें देखा, हम ऊपर से देखे थे कि he was doing, अरे क्या है, और जैसे कहते हैं ना चलते फिरते गुजर, राइट, well, you see, so active and mashallah. Now even their children, they are not able to cope up with the pace that he was working. उन्होंने किसी को रख लिया, वो उस वक्त, वो जब वो हमारे जो मेरे अंकल होते थे ना, अंकल नहीं मतलब दादा बूढ़े, वो और उनकी मिसेज, they used to do, आराम से इतना कुछ कर देते थे घर में कि their kids didn't even think of keeping someone, and now these people, they are like so young and she is a housewife, but she's like मेरे से तो नहीं उस वक्त क्या, and they माशाल्लाह lived a long life, क्योंकि एक्टिव होते थे, खाना भी इस तरह से खाते थे और टाइम पे खाते थे, सही खाना खाते थे, ऐसे इधर उधर की कोई चीज जैसे जो ना वो है, काम करते थे, हजम होती थी, and that is it, what do you need? आपका जब कभी सेशन होगा ये वन वे नहीं होगा, आप नेक्स्ट टाइम इनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, अच्छा, आज जो हुए थे आप, दिस इज नॉट द वन वे, टू वे। और Yes. माशाल्लाह, if we have any problem, I think he is more aware. There are associations, like मैं नहीं कह रही हूँ कि किसी को है ऐसा, कोई अगर आप नहीं जाने में तो he is माशाल्लाह more aware of. There are association which deal with the acute people, जिन्हें कुछ याद नहीं रहता, like you know, they बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इस तरह के सिर्फ चल रहे फिर रहे, mind is all vegetable जिसे कहते हैं ना. There are inshallah next time I'm going to take up another topic and we'll discuss about it. मुझे one question है, जैसे ये है डिमेंशिया इज मोर सीरियस देन अल्जाइमर, It's a broad है ना, concept. ज्यादा वो होता है हाँ बिल्कुल, अल्जाइमर के मुकाबले में। अल्जाइमर के मुकाबले। यानी लोगों को सीरियस लेना चाहिए फिर। हाँ, तो इन दोनों केस में सीरियस है, दोनों में लेना। ये भी तो डिमेंशिया ज्यादा है ना। हाँ Dementia ज़्यादा है, वही। अल्जाइमर इनिशियल है, डिमेंशिया हाँ, उसके ऊपर है। अल्जाइमर समझ नहीं नहीं ये दो डिफरेंट है, दो different मिलते है। जुलते हैं। अल्जाइमर इज डिमेंशिया जो है वो इज अ ब्रॉडर, हाँ ज्यादा उसके उसके दिमाग का जो है उसके वो बारे में इंशाल्लाह ज़्यादा। मैं नेक्स्ट टाइम Yeah. ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है ना उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट टाइम बात करें, क्योंकि you मगर guys are आपका next thing to be टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और हम लोग को बहुत माशाल्लाह मसरूफ रखा। I'm like telling you this is my it should be like my बहुत अच्छा second, topic। पहली बार उधर जेंट्स में मेंस में ये कहता था, तो मैं सेकंड
ऐसे मैं कोई स्पीच या कोई ऐसे वो नहीं, जस्ट आई एम कन्वर्सिंग विद यू गाइस, सो आप मुझे हेल्प करें इफ एनी क्वेश्चन, और मुझे अगर कुछ आपको गलत दिख रहा तो उसको भी रेक्टिफाई नहीं, करें। बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, नाइस। Thank you.